All right, so good morning, everyone. We'll wait a couple of minutes for others to join in. All right, so जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था that we are done with mole concept chapter and we are going to start with a new chapter today, atomic structure. Before we start with that new chapter, there are some very important points that I wanted to highlight, right? So that becomes a very important part of your revisions and closing this current chapter of mole concept. नाउ बुकलेट में हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं मोल कंसेप्ट के, ठीक है, एंड देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच वर स्टिल रिमेनिंग. सो इसमें एफबीओ, एफबीएस एंड गेट इक्विप टू मेंस एंड एडवांस्ड, ठीक है. दिस इज समथिंग व्हिच यू विल हैव टू डू टिल सैटरडे, ठीक है. मैंने आप लोगों को ऐसे लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, बट गिवन दैट थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हैं, you have time till Saturday to complete these sections, ठीक है. Now, apart from this, there are two other sections in the booklet: expertise and windows to mains and advanced. Now, a lot of questions have asked out regarding कि हमें कैसे करना है expertise and windows वाले section को. So, पहले तो एक बार बहुत ध्यान से समझ लो, expertise का जो section है, it has got really difficult questions. ठीक है, sometimes those questions can even take like for a new student almost like a half an hour, and still they might not end up getting the answer. So these questions are something which are optional, okay. This is not something which is expected from you that आप mandatory है कि ये करके इतने टाइम के अंदर लेके आओ, ठीक है. ये अभी ऑप्शनल ही रखा जा रहा है, एंड डिपेंडिंग अपॉन एट व्हाट कंफर्ट लेवल यू आर, ठीक है. आपसे क्वेश्चंस ये प्रीवियस सेक्शंस में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हाउ कंफर्टेबल वर यू विद द असाइनमेंट्स दैट आर शेयर्ड, राइट, हाउ कंफर्टेबल वर यू विद द प्रैक्टिस टेस्ट और डीपीपीज आई शेयर्ड विद यू, उसके बेस्ड आप इनको ट्राई करो, ठीक है. अदरवाइज इफ यू आर काइंड ऑफ नॉट मच कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रीवियस टास्क, I would not recommend to venture into the expertise wala territory. It makes more sense to ensure that the basics are right rather than getting stuck with these advanced questions. Acha, window wala jo section hai, which is windows to mains and advanced, that is something which contains previous year ke questions, ठीक है. Now again this is something जिसमें जो अच्छे questions हैं वो तो मैं क्लास में कवर कर ही देता हूँ, the good questions which were there. The other questions they are actually quite easy. अगर आप इसका लेवल पूछो मुझसे तो काफी easy लगता है ये, and this is something again optional, ठीक है. You can again try it as per your comfort. This is something which is over and above the homework that you have, ठीक है. The reason why I made it optional is actually there are two ways of working about it. Sometimes some students prefer to do these questions right now with the chapter itself,
whereas there are some alternate ways also working with this, that once the syllabus gets completed and when students are supposed to do their revisions, then they actually pick ऐसे अरिहंत का book which consists of chapter wise previous year questions. ठीक है, तो वो अपने revisions के साथ में फिर इन questions को भी देखते जाते हैं. ठीक है, कि we have done the chapter and now where we are as compared to the previous year questions that were asked. So both the strategies are fine. There is no problem in choosing either of them. ठीक है, so I have kept these expertise and windows both section as optional for students who want to do and work on. Saturday तक आपको बुकलेट का ये FBO and FBS and get equipped वाला पार्ट, ठीक है, ये आपको करना है. हाँ, अभी सबसे पहले on priority I'll be sharing some video explanations of mole concept का जो assignment 3 मैंने भेजा था. ठीक है, and make no mistake that assignment 3 was actually expertise level only. ठीक है, अगर आपने ट्राई करा है और जगह जगह से धुआं निकला है उस असाइनमेंट को ट्राई करने के बाद, तो दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज दैट असाइनमेंट वाज समथिंग दैट वाज मेड क्वाइट डिफिकल्ट. तो मैं पहले ऑन प्रायोरिटी उसका आप लोगों के साथ में सोल्यूशन डिस्कस करके मतलब शेयर करूंगा वीडियो एक्सप्लेनेशन. देन उसके बाद सेकेंड आई विल शेयर द ये FBO FBS एंड गेट इक्विप्ड वाले पार्ट का वीडियो एक्सप्लेनेशन, जो भी इनमें बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका explanations I'll share with you. And then after that, ठीक है, I will take out time to give you the video explanations for the expertise based questions. ठीक है, in the meantime, ठीक है, you can work on them, rework on them only if you are confident. ठीक है, now apart from this, आज मैं आप लोगों के साथ में दो प्रैक्टिस टेस्ट भी शेयर करूंगा. DPPs you can say or practice tests which are something based on concentration terms and some mixed questions. दो टेस्ट भेजूंगा and these are practice tests only, self try करना है time bound manner में, and you have time till Sunday. ठीक है, आप चाहिए तो थोड़ा सा और stretch कर लो because these tests are roughly going to be half hour and 1 hour. मतलब एक टेस्ट आधे घंटे का, एक टेस्ट 1 घंटे का है लगभग. तो आराम से प्रेप के साथ में दो. ठीक है, संडे को देना है तो संडे को दो, नहीं तो उसके बाद में भी दोगे तो चलेगा. बिकॉज अभी स्टार्टिंग में व्हेन आई एम टेकिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं इसके साथ स्टार्ट करूंगा तो we are not able to going to as in I am not able to going to give you a lot of homework, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स रहेंगे, तो आपके पास अभी काफी टाइम रहेगा to ensure that mole concept का completeness is there. ठीक है, now apart from this, a very important topic which I wanted to talk about is revision. ठीक है, this is something which is applicable to all the subjects as well. जैसे मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग से रिविजन स्ट्रक्चर्ड मैनर में करोगे तो आपके लिए आगे काफी आसानी रहेगी. अदरवाइज यू विल बी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मैनेज द एवर इंक्रीजिंग सिलेबस. ठीक है, 11-12 दोनों का कंबाइंड सिलेबस बाद में पूछा जाता है, तो स्टार्टिंग से जितना स्ट्रक्चर्ड रिवीजन है उतना अच्छा रहेगा. नाउ नोटिस करना, एज आई हैव क्लियरली हाईलाइटेड, आपके लिए रिवीजन में थियोरी पार्ट इज merely 20%. 80% of the revision actually is going to come from good questions. ठीक है, so theory part को revise करने के लिए what you can do is you can work on preparing a formula sheet. ठीक है, this is something which is kind of a quick summary of the entire chapter. ठीक है, 3-4 पेज से ज्यादा का नहीं बनना चाहिए मोल कंसेप्ट में. ठीक है, इवन इफ आप अच्छे से फैला के लिखो, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू क्रैम थिंग्स अप, तो आप 1 या 2 पेज में भी मैक्स टू मैक्स इसको खत्म कर सकते हो. एंड व्हाट इट नीड्स टू हैव, उस पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स डाल देता हूँ. इट नीड्स टू हैव अ सब टॉपिक वाइज इंफॉर्मेशन. ठीक है, इन द ऑर्डर दैट वी हैव स्टडीड इन द क्लास. कुछ फॉर्मूलाज हैं तो आप वो फॉर्मूलाज मेंशन करो, एंड जस्ट ब्लैंकली फॉर्मूलाज मत मेंशन करना, उन फॉर्मूलाज का थोड़ा डिटेलिंग भी कर दो कि उनमें जो टर्म्स हैं, जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं, उनका मीनिंग क्या है, जो वैल्यूज डालनी है वो किस यूनिट्स में डालनी होती हैं, एंड अगर उसमें कुछ कांस्टेंट्स हैं तो वो कांस्टेंट्स का वैल्यूज एंड ऑल क्या रहेगा. राइट, जैसे PV = NRT है तो उसमें PV सब क्या मीन करता है उसके बारे में लिखो.
ठीक है, कौन सी यूनिट्स में इनको डाला जाता है, एंड जैसे आर गैस कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू क्या यूज करना रहेगा, ये सब आप अच्छे से डिस्क्राइब करो। ठीक है, then sometimes you might not have a formula for a subtopic but some key statements, you know, जैसे for example limiting reagent का subtopic है तो उसमें you can have a statement like you know stoichiometric ratio जिसका least रहेगा वो हमारा limiting reagent होगा, analysis जिसके respect में होगा you know प्रोडक्ट कितना बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में दिखा जाएगा। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दैट यू कैन यू नो पिक एंड ड्रॉप इन दोस सब टॉपिक्स। एंड ग्राफ्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे तो इस चैप्टर में हमें भी ग्राफ्स की जरूरत पड़ी नहीं है, ठीक है, बट आगे आने वाले कई सारे चैप्टर्स में ग्राफ्स विल आल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग, सो इंश्योर दैट दैट ग्राफ्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दोस फॉर्मूला शीट्स। ठीक है, देन यू हैव सर्टेन फिर जैसे मैंने आपको बताया ये 20% रिवीजन का पार्ट हुआ, अब 80% ऑफ द रिवीजन एक्चुअली इज गोइंग टू कम फ्रॉम गुड क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ दीज गुड क्वेश्चंस आर समथिंग दैट यू विल हैव टू शॉर्टलिस्ट बाय योरसेल्फ। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड बोथ दीज एक्सरसाइजेस आर टू बी डन एट अ पर्सनल लेवल बाय ईच स्टूडेंट। ठीक है, मतलब आई नो फॉर श्योर दैट आप लोगों को शॉर्टकट्स की आदत हो गई है, तो सम ऑफ यू माइट कम अप एंड से सर आप फॉर्मूला शीट क्यों नहीं बना के दे देते हमको। ठीक है, हाँ ये हर्षितांशु, सर इट इज एडवाइजेबल टू डाउनलोड अ फॉर्मूला शीट ऑनलाइन। बिल्कुल भी नहीं हर्षितांशु, ये शॉर्टकट्स आर गुड फॉर नथिंग। चाहिए तो मैं भी बना के दे दूंगा एक फॉर्मूला शीट, बट कोई फायदा नहीं होगा उससे, वो पड़ा रह जाएगा। until and unless you put that effort, you ensure that you understand the topic and are able to summarize it well, तभी इसका सेंस बनता है। ठीक है, I don't know how you guys do not understand or appreciate the importance of a process. Until unless you become part of that process, you put that effort into it, you wouldn't get the same benefits out of it as compared to you know just किसी ने दे दिया और बैठ के अपनी रिपोजिटरी में अच्छे से उसका प्रिंट आउट निकाल के फाइल करके रख दिया, वैसे नहीं चलेगा हर्षद। Please understand, you have to work it on your you know on this by yourself. Then as I said कि ये 20% आपका रिवीजन रहेगा, 80% is going to come from shortlisted questions. ठीक है, तो these are the questions which you are going to see you know from various sources. ठीक है, क्या क्या सोर्स रह सकते हैं ये, तो ये आपके क्लास नोट्स हो गए, ठीक है, बुकलेट हो गया, असाइनमेंट्स लाइक असाइनमेंट डीपीपीज जो भी मैं आपको भेज रहा हूँ, या फिर टेस्ट पेपर्स। ठीक है, अभी टेस्ट होने शुरू नहीं हुए बट आपके सामने आएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप के टेस्ट आएंगे जिनमें देयर विल बी अ कलेक्शन ऑफ गुड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सब आप अपने पास रखोगे, एंड देन देयर कैन बी समटाइम्स रेफरेंस बुक्स आल्सो। ठीक है, अभी के लिए तो मैंने आपको कोई बुक बताया नहीं है बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी राइट नाउ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे सिलेबस में, तो आई विल रिकमेंड यू कि यू कैन वर्क फ्रॉम सम बुक्स। ठीक है, अभी के लिए नो रिकमेंडेशंस। ठीक है, इफ यू जस्ट वांट वन रिकमेंडेशन तो आई विल गिव यू एनसीईआरटी, कि उसमें से आप थोड़ा सा थ्योरी वगैरह पढ़ना चाहते हो तो इट्स ओके, बट अदरवाइज आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग राइट अवे। जब मुझे लगेगा कि हाँ अब जरूरत है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की, यू गाइज हैव कॉट अप विद द वे ऑफ वर्किंग एंड द स्टाइल ऑफ लर्निंग, तो आई विल आस्क यू टू प्रैक्टिस मोर। ठीक है, तो एज आई वाज सेइंग कि ये जो आपके सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज में से ठीक है, व्हेन यू डू क्वेश्चंस यू माइट कम अक्रॉस सम गुड क्वेश्चंस जिनमें आपको टाइम लगा, आप शायद स्ट्राइक नहीं कर पाए कैसे करना था, या फिर कुछ केयरलेस मिस्टेक्स हो गई, तो उनको आप शॉर्टलिस्ट करो, उनको हाईलाइट करो। ठीक है, स्टार मार्क करो, डबल स्टार मार्क करो। ठीक है, इंश्योर दैट दीज आर हाईलाइटेड so they become your shortlist questions for revisions. So when you are going to let's say आज से 6 महीने बाद मोल कंसेप्ट का रिवीजन करना है, तो randomly you are not searching कि कहाँ से करें क्या करें, you have this ready resource available with you, जिसमें से आप करोगे ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में this is how I used to work with questions. ठीक है, अच्छा सी क्लास नोट्स बुकलेट एंड असाइनमेंट्स, ये तो कैसा है कि चैप्टर वाइज है, तो इनमें तो आपको क्या है कि क्वेश्चंस को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसी में हाईलाइट कर दो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बट जैसे टेस्ट पेपर्स एंड ऑल है, तो टेस्ट पेपर्स एंड ऑल तो कैसे आएंगे, इंटरमिटेंटली आते जाएंगे, उनका कोई रेगुलर है नहीं, एंड दे विल नॉट बी आल्सो समटाइम्स दे माइट बी टॉपिक वाइज, समटाइम्स दे माइट नॉट बी टॉपिक वाइज। सो यू हैव दोस क्वेश्चंस, तो उनको आप अलग से you know you take a paper and write those questions and solution in this, and you know attach it with your booklet. ठीक है, so make sure that all of those things are in one place itself.
ठीक है। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप बुकलेट के, असाइनमेंट के सब क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अलग से लिख के एक अलग नोटबुक बनाओ, नहीं, दैट विल बी टू मच ऑफ एन एफर्ट, टू मच ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। ठीक है, आप लोगों ने बुकलेट है, आप लोगों के पास बुकलेट है, बुकलेट पे अच्छे क्वेश्चन है, आपने हाईलाइट कर दिए, ठीक है, उन हाईलाइटेड क्वेश्चन के सोल्यूशन जरूर आई वुड रिकमेंड कि आपके पास होने चाहिए सही से, ठीक है, in a separate notebook, but no need to copy those questions and kind of make a new notebook of shortlisted questions. ठीक है, you can actually work with those from these chapter wise sources. ठीक है, once that is there, अब यहाँ पे आप नोटिस करना कि जो ये चैप्टर, जो ये शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चंस है, इनमें तीन चीजों को डेफिनेटली हाईलाइट करना। एक तो उनका सोर्स जो है वो आपको पता होना चाहिए, देन उनका सोल्यूशन, ठीक है, आपने लिखा हुआ होना चाहिए, एंड लेट दैट नॉट बी अ सोल्यूशन व्हिच इज समथिंग दैट आई हैव रिटन और आई हैव गिवन। ठीक है, समटाइम्स देयर आर दीज स्मार्ट पीपल जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उन्होंने सोल्यूशन देख लिया जो मैंने वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, सेव करके रख लिया, कोई फायदा नहीं है सबका। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, until and unless you solve it by yourself, please do not get any false impression कि आपको शायद वो क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया है। Until and unless you put that effort, rework on that question, match the final answer, then only be confident कि हाँ भाई मुझे सॉल्व करना आ गया है। ठीक है, otherwise these shortcuts like saving screenshots and all, it's not going to help you. And another very very important part is that जो क्वेश्चंस आप हाईलाइट कर रहे हो, शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, उनमें if there are questions which have chapter specific careless mistakes, तो आप उनको भी हाईलाइट करो। ठीक है, ensure that those mistakes are something which are highlighted by you so that you do not make them in future. ठीक है, so if I talk about careless mistakes, see lot of students come up with this problem कि सर आता है कॉन्सेप्ट बट केयरलेस मिस्टेक्स हो जाती हैं और उसकी वजह से नंबर हमारे चले जा रहे हैं। This is a perennial problem. It happens with everyone. Even when I am solving questions also, I tend to make those mistakes. Okay? Now, how do you work with these careless mistakes? The first thing towards working with careless mistakes is identifying these mistakes. Okay? You should know what are the kind of careless mistakes that you are making. Now, please understand, broadly speaking, you make two kinds of careless mistakes. Some which are general, some which are chapter specific. ठीक है, जनरल केयरलेस मिस्टेक कैसा हो गया कि मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, ठीक है, या फिर विच ऑफ द और कैलकुलेट द एडिशनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूछा था और मैं वो एडिशनल वर्ड भूल गया, मैं टोटल मार्क करके आ गया। ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा था और मैं करेक्ट मार्क करके आ गया। सो दीज आर काइंड ऑफ जनरल केयरलेस मिस्टेक्स, दे हैपन विद everyone, and the only way you can work with this is to actually ensure that you change certain habits. जैसे कैलकुलेशन बेस्ड मिस्टेक्स हैं तो उसको चेंज करने का हैबिट है कि मेंटल कैलकुलेशन अवॉइड करो एंड जितना हो सकता है पेन चलाओ, जितना हो सकता है लिख लिख कर, भले ही अच्छी हैंडराइटिंग नहीं हो, बुरी हैंडराइटिंग में लिखो, बट लिख लिख कर अपनी कैलकुलेशंस को करो एक बार। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया, दैट रे इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय अ थिक मिरर, ठीक है, तो थिक मिरर में थिक वर्ड को अंडरलाइन करो ना, बिकॉज पहले रिफ्रैक्शन होगा फिर रिफ्लेक्शन होगा। So that is something which is a catch. So when you are reading those questions, make a habit of underlining or highlighting any catch words that you come across. ठीक है, बिकॉज होता कैसा है कि समटाइम्स हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ जाता है, उसका यूफोरिया इतना हो जाता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि यार मतलब एक्चुअली में इसमें कुछ ट्रिक था क्या, एंड वी एंड अप मार्किंग द इनकरेक्ट थिंग। एंड मेरे जैसे सेडिस्ट पेपर सेटर होंगे तो वो तो ऐसा ऑप्शन डालेंगे जिनको पता है कि ये केयरलेस मिस्टेक होगी और बच्चे गलत करेंगे। तो इंश्योर that you develop this habit of highlighting those questions. ठीक है, highlighting any important aspect in that question so that when you solve and when you put the answer, उसके पहले आपकी नजर उस पर पड़ जाए कि हाँ हाँ ये चीज का ध्यान रखना था। ठीक है, then there are these chapter specific careless mistakes. ठीक है, now this is a bank of careless mistake which gets accumulated over time. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अभी यहाँ पर नोटिस करा होगा, वन ऑफ द कॉमन चैप्टर स्पेसिफिक केयरलेस मिस्टेक मूल कंसेप्ट में है मिक्सिंग वर्ड को लेकर। ठीक है, जब हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं बिटवीन
टू सॉल्यूशंस, तो फाइनल वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। समटाइम्स स्टूडेंट्स आर स्टिल मेकिंग दैट मिस्टेक ऑफ नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द फाइनल वॉल्यूम। तो वो एक चैप्टर स्पेसिफिक केयरलेस मिस्टेक हो गया। जैसे यहाँ पर काशवित ने बोला यूनिट्स को लेकर भी केयरलेस मिस्टेक होता है मैनी अ टाइम्स। अंडरस्टैंड कि किलोग्राम्स, लीटर्स, ठीक है, तो ग्राम्स, मिलीलीटर्स, इनके रिलेटेड मिस्टेक स्टूडेंट्स कर रहे हैं। So that is something which is a unit based careless mistake, तो that is specific to this chapter कि इसमें ऐसी quantities और इनकी units use होती जा रही है, तो उनको आप highlight करो। So इस तरीके से आप work करोगे तो you will be in a much better position in your revisions as compared to someone who is just having this superiority complex कि भैया मैं तो intelligent हूँ, class का topper रहा हूँ, and all I need to do revision is just go through the notes and I am sorted. Believe me, those guys are really going to suffer because यहाँ पर रिविजन करने का पूरा तरीका ही चेंज हो गया है। ठीक है, पढ़ाई का तरीका जैसा आपने नोटिस करा होगा, लॉट ऑफ लर्निंग कम्स फ्रॉम क्वेश्चंस, ठीक है, एज कंपेयर टू हाउ इट वाज अर्लियर, थ्योरी पढ़ के करते थे। So please bear this in mind and let me just zoom out so that everyone understands these important points that I just spoke about. ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछो एंड देन आई विल ट्राई टू आंसर द रेलेवेंट वंस। काफी सारे इररेलेवेंट क्वेश्चंस ही पूछते रहते हो। ऑलराइट, सो वेद का क्वेश्चन है कैन वी मेक अ सेपरेट फॉर्मूला बुक इंस्टेड ऑफ शीट्स। हाँ, मतलब ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स योर कॉल मैन, मतलब इट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू वांट टू मेक अ सेपरेट नोटबुक। ठीक है, ओके। युग का क्वेश्चन है सर टेस्ट का कुछ अपडेट है। टेस्ट का अभी आपके लिए अपडेट नहीं है, ठीक है। अभी the only test which I am giving you are self assessments, practice based ones which you are taking right now, ठीक है। आज ही भेजूंगा मैं। ऑनलाइन टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले आई वाज ट्राइंग टू गेट वन डन बट देन आई वाज एडवाइज्ड अगेंस्ट, सो दैट्स ओके, आई अंडरस्टैंड द रीजंस। सो जब होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। Okay, so another question comes from Manthan. We don't have a hard copy of the questions. How to deal with them? मतलब सॉफ्ट कॉपी से डील करने में क्या प्रॉब्लम है? कॉपी पेस्ट करो, क्या दिक्कत है? Okay, then there is a question. Can you send all the booklet solution videos till now in the group? No, Rohan, absolutely no. मतलब if you are willing to, stoop to this level wherein I like feed you till the spoon, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेजे हुए हैं, प्रॉपर हर बार नाम लिख लिख के वीडियो भेजता हूँ, तो इतना तो कम से कम एफर्ट डाल लो दैट जाके एक बार खुद स्क्रॉल डाउन करो या सर्च करो एंड मेक दैट फॉर योरसेल्फ। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एम आई समवन हु इज लाइक एट योर सर्विस कि भैया मतलब आप लोगों को आप चुटकी बजाओगे तो आप लोगों को फिर मैं लिस्ट बना के देता जाऊंगा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक सच स्टूपिड रिक्वेस्ट काइंडली रोहन। देन यश का क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिविजन। वेल यश, अभी तो कैसा है, आप लोगों को काफी रिलैक्स वे में पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को मतलब धीरे धीरे स्लो स्पीड में पढ़ाया जा रहा है, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, ठीक है। बट सूनर और लेटर जब स्पीड थोड़ी सी हम लोग पिक करेंगे तो आपका वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, तो वहां पर रिविजन्स की फ्रीक्वेंसी विल बी ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द टेस्ट्स, मेजर टेस्ट जो आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जैसे आप लोग मूल कंसेप्ट कर रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू नहीं हुआ है, तो यूज दैट टाइम टू काइंड ऑफ रैप अप दिस रिविजन कंटेंट, एंड फिर जब टेस्ट आने वाला हो आप लोगों का तो उसके पहले आप डेफिनेटली टेक टाइम टू रिवाइज। ठीक है, ऑलराइट। सो स्वास्थ्य का क्वेश्चन है एक्चुअल टेस्ट का लेवल एंड प्रैक्टिस टेस्ट का लेवल सेम होगा? वेल काइंड ऑफ सिमिलर होगा। ठीक है, कोई भी टेस्ट जब डिजाइन करा जाएगा ना, आप नोटिस करना, जब भी कोई भी टेस्ट डिजाइन करा जाएगा तो उसमें टिपिकली ऐसा होगा कि 20-30% क्वेश्चंस काफी इजी डाले जाएंगे, एकदम लल्लू कि पढ़ा और आ गया। ठीक है, 50-60% क्वेश्चंस आप मान लो विल बी समथिंग जिसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, मीडियम लेवल बेस्ड क्वेश्चंस है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा, पढ़ते ही स्ट्राइक नहीं करेगा। ठीक है, एंड देन 20% क्वेश्चंस आप मान लो ऐसे होंगे जो कि डिफिकल्ट होंगे। ठीक है, दोज विल बी द रैंक डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चंस,
they will be the ones which will be used to differentiate the ranks. Give me just 1 second. So coming back, then how to avoid mistake in interconversion, that is something which as I said कि आप लोग practice करोगे तो समझ में आएगा, ऐसा कोई particular जादू की छप्पी नहीं है. Then अली is saying जब क्लासेस चालू होंगे तो स्टडी कैसे मैनेज करेंगे? मतलब क्लासेस चल तो रहे. What is it that you are not able to get with this session? Is this a class or not, Ali? Then next question is from Manan. If we are more comfortable with something like a mind map, can we stick to that instead of making a tabled formula sheet? Yeah, it's absolutely fine, Manan. That's something which is up to you. Shubham, yes, we are going to start the next chapter today. Kudrat, shortlisted questions should be solved how many times? Well, if you are able to solve it by yourself, okay, then it should be sufficient. ठीक है, तो next time आपको पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. You should be able to just look at the question and understand and see how it is to be done. ठीक है. Then Ranveer, sir, do we have to solve booklet questions in the same book as we write the theory? ये तो मैंने मना करा है ना, करोगे तो आपका क्लटर हो जाएगा. Then युग का question है, is it good to solve the question then check the answer? सी बुकलेट में कर रहे हो तो चेक द आंसर कर सकते हो, ठीक है, बट जैसे प्रैक्टिस टेस्ट दिया है तो उसमें वैसे मत करो. ठीक है. देन डू वी हैव टू ऑलवेज सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय अ फॉर्मूला एंड कैन बी mentally, that depends on the question, Vivek. Sir, how do we update the revision notes after every lecture? नहीं तो आप रिविजन नोट्स अभी मत बनाओ ना, रिविजन नोट्स चैप्टर खत्म होने के बाद में बनाओ. सांग, डोंट वर्क ऑन इट राइट अवे. All right. Irrelevant question. All right. खूब सारे irrelevant questions. Okay, then भाविक का question आया step. तो step app आप लोगों ने complete करा है कि नहीं करा है भाई अभी तक? Step app complete नहीं करोगे तो वहाँ dashboard पे update नहीं होगा, आप लोगों को class में नहीं बैठने दिया जाएगा. I am warning you. मतलब दिस संडे देयर इज गोइंग टू बी एन असेसमेंट, मतलब आप लोगों को फीडबैक फॉर्म वगैरह भरना है. उसके बाद में दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड स्टेप ऐप ऑफ मोल कंसेप्ट येट, आप लोगों को मतलब देयर विल बी एन एक्शन अगेंस्ट. प्लीज इंश्योर दैट यू कंप्लीट दैट. इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड. ठीक है. एंड हाँ, असाइनमेंट 3 के सॉल्यूशंस मैं आज भेज दूंगा रोहन. ओके. अंशुल, irrelevant question. All right. ठीक है. So I think good enough. We have spent almost half an hour into discussing this, but I feel that it is quite important. Now let's begin today's discussion with the atomic structure as a chapter. Now before we get into the details of this chapter, couple of things as a brief overview. ठीक है, काफी important chapter है. फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री दोनों में इसके क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो आप लोग 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स करके, तो उसमें वापस से इस चैप्टर की डिटेल्स डिस्कस होंगी. तो एवरी ईयर इफ यू लुक इनटू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, फिजिक्स के सेक्शन में एंड केमिस्ट्री के सेक्शन में दोनों में विदाउट फेल इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है, समटाइम्स क्वाइट इजी. जैसे पिछले साल एक्चुअली सरप्राइजिंगली 2019 में 3 क्वेश्चन आ गए इससे एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर से, मतलब एंड तीनों काफी सिंपल. मतलब एक को थोड़ा मैं डिफिकल्ट बोल सकता हूँ, उनमें से मीडियम लेवल बोल सकता हूँ, बट 2 काफी सिंपल क्वेश्चंस आ गए. उसके पहले देयर हैव बीन क्वेश्चंस जहां पे अगेन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया कैसे करना है. इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन.
So there have been variety of questions from this. And it is a very, very important chapter from the point of view of the examination. Now, apart from the point of view of examination, this is actually a very, very important chapter from the point of view of understanding chemistry as well. Okay? In fact, if you will notice many standard books, तो मोल कंसेप्ट जैसा चैप्टर एक्चुअली पढ़ाते नहीं है स्टैंडर्ड बुक्स में. It is considered like basic maths. They actually start with the atomic structure as the first chapter to build onto the understanding of things at a small scale. Now, from the perspective of syllabus that we are going to cover, okay, let me quickly highlight the new things that you are going to work, because atomic structure एक ऐसा चैप्टर है जो कि ऑलमोस्ट हर बोर्ड में, सीबीएसई हो कि आईसीएसई हो कि स्टेट बोर्ड हो कि आईजी बोर्ड हो, सब स्टूडेंट्स के बच्चों ने, मतलब सब बोर्ड के स्टूडेंट्स ने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ठीक है, एक बार तो बेसिक कवर हो ही गए. नाउ दिस इज समथिंग नोटिस करना, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस चैप्टर. सो एक बेसिक स्टफ आप लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ है. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाऊंगा अगर मैं, तो आप लोगों ने डाल्टन्स थ्योरी पढ़ा होगा. ठीक है, उसके बाद में आप लोगों ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा. ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद में आपने एटम्स का मॉडल डिस्कस करा होगा, थॉमसन मॉडल होगा, रदरफोर्ड मॉडल होगा. ठीक है, इनके ड्रॉबैक्स भी डिस्कस करे होंगे. एंड देन बोर्स मॉडल भी पढ़ा होगा. ठीक है, बोर्स मॉडल की डिटेल्स वगैरह देखी होंगी. एंड दिस इज व्हाट द बेसिक पार्ट एंटेल्ड. ठीक है, दिस इज समथिंग विच वी ग्रो इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. हम लोग भी इस बेसिक पार्ट को कवर करेंगे, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई we will have a lot of numerical focus on this. ठीक है, I am going to actually talk about certain new aspects in this. ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, which will be going into a lot of details in these subtopics that you have already studied before. ठीक है, आप लोगों ने इनकी बहुत ही superficial understanding ली है in your junior classes. This time we are going to go in much more details. ठीक है, however, Bohr's model is not the end of the understanding of atomic structure. In fact, Bohr's model is something which was evolved, and a more complex and a more robust model of system of structure of atoms was developed. Okay, so that is something which is an advanced part. That is the quantum mechanical model, or you can say wave mechanical model of atom, which we are going to discuss in a lot of detail. ठीक है, सो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है इस चैप्टर का. ठीक है, हम लोग डिटेल में जाएंगे, एंड आई विल नॉट अज्यूम दैट आप लोगों ने जो पढ़ा है पहले वो आपको याद है. सो आई एम गोइंग टू एक्चुअली पिक थिंग्स फ्रॉम द बेसिक्स ओनली. ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम द स्क्रैच सो दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज. नाउ अब जो सबसे स्टार्टिंग पार्ट है, ठीक है, इसका पार्ट थ्योरेटिकल है. ठीक है, जो स्टार्टिंग में मैं आज बात करूंगा आप लोगों के साथ में, दैट इज प्राइमरीली वी गोइंग टू बी अबाउट कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सीआरटी एक्सपेरिमेंट. अब थ्योरेटिकल है, उस पर खास कुछ न्यूमेरिकल एंड ऑल नहीं है. तो जो थ्योरी पार्ट है वो आप लोगों का बुकलेट में ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है, so I am not going to waste much time into dictating step by step that ये experiment था, ये उसका observation था और ये उसका conclusion था. ठीक है, that is something which is meant for boards, not at all meant for exams like JEE. ठीक है, तो उसका जो थ्योरी पार्ट है वो ऑलरेडी आपका बुकलेट में है. ठीक है, आप उसको रीड करोगे तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा. मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा इन अ स्लाइटली बिट एन इंटरेस्टिंग वे. ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग, ट्राई टू शो यू द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट. जैसे आपने नोटिस किया होगा, मैंने एक्चुअली ग्रुप पे कुछ लिंक्स शेयर करे थे अभी सुबह सुबह इन द प्रीवियस क्लास. तो आई विल बी टेकिंग यू थ्रू दोज वीडियोज एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स आर. ठीक है, पोदार वाले ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा, वो अभी अंधेरी वाले ग्रुप पे शेयर हुआ था. सो यहाँ पर अभी
Don't try to make any notes, just pay close attention to how things are happening. All right. Okay. So the starting part of the chapter starts with Dalton's theory. Okay, Dalton's theory of atoms, and in fact, before Dalton's theory, there were these postulates of many ancient Greek and Hindu philosophers, which talked about this aspect of matter being indivisible, right? So that was something again, theory, a lot of it has been covered and discussed in a lot of detail, so I'm not going to move into that. What I'm going to actually start with are subatomic particles. ठीक है, बैकग्राउंड इसका कुछ इस तरीके से है कि अराउंड 1800s में, ठीक है, 1806 1808 something around that period, Dalton proposed his theory of atom, but nothing much of research was done actually to understand what is it that an atom is made up of. ठीक है, it was something which was considered to be indivisible, तो किसी ने ज्यादा कुछ ध्यान भी नहीं दिया एंड रिसर्च भी नहीं करा. ठीक है, एंड ऑनेस्टली उस टाइम पर जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, they were quite keen on other areas of research. In fact, during that period, जो 1800 से 1850s का टाइम है, उस टाइम पर it was electricity and magnetism that was the most hot topic of research. ठीक है, that was something जैसे आज के जमाने में we can say AI, machine learning, या big data, these are the critical and crucial areas of research. Genome analysis, bioinformatics, ये सब अभी के exactly, corona vaccination, these are the recent and the most important areas of research right now. उस जमाने में it was electricity and magnetism. So उस time पर scientists, they were actually trying to understand the electricity and magnetism के properties, and they set up an experiment which was done to study. ठीक है, मैं यहाँ पे highlight कर देता हूँ. It was done to study conduction of electricity through gas at low pressure under high potential difference. ठीक है, ये उनका सेटअप था. That this is what they wanted to study. तो उसका सेटअप किस तरीके से था, यहाँ पर नोटिस करना. ऐसे एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर गैस फिल्ड अप है. ठीक है, बट द गैस इज एट लो प्रेशर. ठीक है, हाउ इज इट मेड टू हैव लो प्रेशर? ठीक है, इसमें से ऐसे वैक्यूम पंप निकालकर गैस को सक आउट कर लिया था. ठीक है, कौन सा टाइप ऑफ गैस? डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट टाइप ऑफ गैस एज वेल. मतलब आप H2 भी ले सकते हो, N2 भी ले सकते हो, हीलियम भी ले सकते हो, डजंट मैटर. ठीक है, एंड इस ग्लास ट्यूब के अक्रॉस, ठीक है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स लगा दिए. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, मेटल इलेक्ट्रोड्स. दे वर सेट अप एंड दे वर कनेक्टेड टू अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स. ठीक है, सो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो ये पॉजिटिव साइड को हम लोग एनोड बोलते हैं. ठीक है, या फिर चलो मैं उल्टा लिख देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली जो वीडियो मैंने शेयर करा है ना, उसमें दैट साइड इज एनोड. ठीक है, ये प्लस, ये नेगेटिव. इसको प्लस पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, एंड नेगेटिव पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड को कैथोड बोलते हैं. ठीक है, एंड दिस वाज अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, अराउंड 10,000 वोल्ट. मतलब अपने घर में 220 से 240 वोल्ट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई होता है,
उसी में शॉक लग जाता है, ठीक है. सो दिस वाज एक्सट्रीमली हाई, ठीक है. सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड दिस वाज देयर सिंपल सेटअप. Now, as part of the experiment, they wanted to actually see what happens, if this gas can conduct electricity or how it can conduct electricity. And this was a typical, you know, a typical experiment to study electricity and magnetism. Okay. Accidentally, something happened in this experiment which led to the discovery of subatomic particles. Okay. Now, having talked about the word subatomic particles, let me make one thing very, very clear. Okay. In our discussion of subatomic particles, we are going to be limiting our discussion to electron, proton, and neutron. Okay. Because a lot of you are actually, aware about it and have a lot of, background about higher physics and even more, fundamental particles called as elementary particles. Okay. What happens is that with further and further development in science, what we understood was that these protons and neutrons are even, further broken down into particles like quarks. ठीक है. So अभी यहाँ पर the thing is, when you look at the standard model of physics, there are these elementary particles, ठीक है, जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि हाँ, these are the ones जिसके बारे में अभी तक हमें पता पड़ा है कि they are not made up of anything else which is more fundamental than them. तो उसका लिस्ट है, उसका मॉडल है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, बट दैट इज नॉट समथिंग विच इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. ठीक है. These are for us OOS. OOS stands for out of syllabus. Okay, so we are not going to get into the details of these elementary particles. The only elementary particles, in fact, there are two elementary particles which are part of our syllabus. One is electron. Okay, electron is also considered as an elementary particle, and there is going to be another elementary particle called as photon. इन दो का ही डिस्कशन है हमारे सिलेबस में. ठीक है. क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, बोसॉन्स, इन सब का हम लोग कुछ डिस्कशन नहीं करने वाले हैं. ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज अदर subatomic particles, or you can say elementary particles. ठीक है. So let me be very clear with that distinction, because बीच में like some of the students do come up with these doubts. Appreciate the curiosity, appreciate the interest to learn, but I am really, really sorry that I would not be able to use any part of the class ka time to work on that. Okay. Now, coming back to this experimental setup. अब इस experimental setup में notice करना that यहाँ पर when we apply this high potential difference, what was noticed by the scientists during this experiment was that there was a strange glow, ठीक है, on the glass wall. ठीक है. ये जो एनोड के पीछे particularly ज़्यादा ब्राइट हो गया था. ठीक है. अदरवाइज थोड़ा फैला हुआ सा ही था, ऐसा नहीं था कि एकदम शार्प है, फैला हुआ सा. there was this green glow on glass wall behind anode. Now this is something which was an unexpected observation. Okay. This became something which was a matter of great interest, because scientists at that point in time did not understand that ये glow आया कहाँ से है. ठीक है. What is the underlying reason behind it. So in order to explore this glow, they kind of modified this experimental setup in various ways and tried to understand more about this glow. ठीक है. So ध्यान से notice करना
the modifications and उससे associated observations and conclusions that came. ठीक है. So सबसे पहला modification which was being done here was that when this setup was run, तो यहाँ पर बीच में एक ऑब्जेक्ट डाल दिया. ठीक है, एक थिक सा ऑब्जेक्ट डाल दिया. ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. ठीक है, एक थिक ऑब्जेक्ट यहाँ बीच में प्लेस कर दिया. एंड व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड वाज दैट उस ऑब्जेक्ट का शैडो गॉट फॉर्म्ड ऑन द ग्लास वॉल बिहाइंड एनोड. ठीक है, जब इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करा तो उसकी वजह से ये ग्लास वॉल पर शैडो बनने लगा. तो इसका मतलब समझ में ये आया दैट ये जो ग्लो हुआ इट इज बिकॉज ऑफ सम रेज. ठीक है, रेज का खुद का कोई कलर नहीं है. ठीक है, बिकॉज यहाँ बीच में ऐसे कोई कलर्ड रेज नहीं दिख रहे थे, बट ये रेज कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, एंड when they strike the glass wall they create this glow. And if we place an object, a thick object, ठीक है, thick object between in their path, then we see its shadow. ठीक है, and the shadow जिस direction में form हुआ it gave us the direction that okay these rays are traveling from cathode to anode. all right, so फिर इन rays का नाम रख दिया cathode rays. ठीक है, तो modification was placing an object, observation was a shadow being formed on the glass wall behind anode. The conclusion was that there are these rays which are traveling from anode towards cathode. ठीक है, और उनका नाम रख दिया सॉरी माय बैड, फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, और उनका नाम रख दिया कैथोड रेज. ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन वगैरह कोई वर्ड कॉइन नहीं हुआ है. अब उन्होंने नेक्स्ट मॉडिफिकेशन डाला. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन वाज that instead of placing a thick object they placed a very thin metal sheet. ठीक है, very thin, quite thin metal sheet. And this time the metal sheet के through the rays were able to penetrate. ठीक है, तो जितना इसका शैडो बनना चाहिए था वैसा शैडो बना नहीं. ठीक है, the extremely thin metal sheet के through these rays were able to penetrate. ठीक है, तो मॉडिफिकेशन समझ में आया, ऑब्जर्वेशन समझ में आया. अब इससे कंक्लूजन क्या समझ में आया? द कंक्लूजन वाज दैट दीज रेज आर डिफरेंट फ्रॉम लाइट रेज दैट वी कम अक्रॉस इन अ डे टू डे लाइफ. ठीक है, जैसे वी कम अक्रॉस rays coming from various sources. ठीक है, sometimes reflected, sometimes from the source itself. Those are light rays as we call it in our daily life, but these cathode rays are different from it. ठीक है, because these cathode rays can penetrate through thin sheets of metal. ठीक है, normal light rays they cannot penetrate through thin sheets of metal. For them even that thin sheet of metal was opaque, but for these rays they could penetrate through. ठीक है, so this led to this conclusion that okay that these rays are different. ठीक है, अच्छा अभी ये मत पूछना विवेक कि why is this so, क्योंकि मैं अभी why पर तो आया ही नहीं हूँ. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई एम टेकिंग यू थ्रू दिस जर्नी, so you will get to know what exactly happened, what exactly it was only in the end. ठीक है, so keep your why questions with you right now. all right, अब उन्होंने नेक्स्ट मॉडिफिकेशन सोचा. ठीक है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन उन्होंने क्या सोचा दैट लेट्स पुट अ लाइट पैडल व्हील. ठीक है, यहाँ पर
ठीक है, दे काइंड ऑफ ऐसे एकदम लाइट सा एक पैडल व्हील रखा, एंड दैट लाइट पैडल व्हील इट कुड रोल ओवर, ठीक है, इट हैड अ हिंज जिसके अराउंड इट कुड रोटेट, ठीक है. एंड with this modification what was observed was that जैसे setup on करा, this paddle wheel started to rotate, ठीक है. This paddle wheel started to rotate, and as a result of which a conclusion was made that that these cathode rays, हाँ मतलब काफी easy to move था, मतलब light था, friction बहुत कम था. And the conclusion that was made was that that these rays are actually made up of some particles. ये particles जब strike कर रहे हैं तो they are imparting a momentum, and because of that momentum a mechanical motion is being produced, ठीक है. So that observation came across that these cathode rays are made up of certain particles, ठीक है. Now अब इन पार्टिकल्स को अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला गया, ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन वर्ड कॉइन नहीं करा गया है, अभी इन पार्टिकल्स को नाम दे दिया कैथोड रे पार्टिकल्स, ठीक है. दैट देयर आर दीज सम पार्टिकल्स जिनका नाम है कैथोड रे पार्टिकल्स व्हिच आर बीइंग emitted because of this setup, ठीक है. नाउ अब क्या करा, दैट फोर्थ मॉडिफिकेशन करा, ठीक है. another modification which was done was that an external, अब ये पैडल व्हील वगैरह हटा दिया, क्या करा यहाँ पर एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड भी चलेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलेगा, ठीक है. एक एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करा, ठीक है. लेट दिस बी नेगेटिव एंड लेट दिस बी पॉजिटिव पोलैरिटी. ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है. and it was applied in such a manner that it was across the direction of flow of these particles, ठीक है. and what was observed after applying this electric field was that these particles they actually showed some deflection, ठीक है. they deflected towards the positively charged plate of the external electric field, ठीक है. कैसे दिखे ये, अब रेस तो नेकेड आई को दिख नहीं रहे थे, बट जो शैडो था यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का शैडो था, वो शैडो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग स्ट्रेट बैक इट फॉर्म्ड अ लिटिल टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है. तो वो शैडो का डायरेक्शन बेंड हो गया. तो इससे ये समझ में आया दैट दीज पार्टिकल्स दैट आर कमिंग दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है. that these particles the direction in which they were deflect हो रहे हैं, इसका मतलब चार्ज है, ठीक है. तभी वो एक्सटर्नल फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है. अदरवाइज न्यूट्रल होते या फिर लाइट रेज जैसे होते हैं तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होते. अब डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन highlighted the fact that these are negatively charged. So based on this modification and observation we got another conclusion that by the virtue of this experiment we have been able to understand that there are certain particles called as cathode ray particles, and these particles are negatively charged. Now ये था अराउंड 1850s और यू कैन से 1860s के बीच का कहानी, ठीक है. अभी तक इलेक्ट्रॉन वर्ड कॉइन नहीं किया गया था, and scientists at that point in time became quite curious about this new discovery called as cathode ray tube particle, ठीक है. cathode ray particle. Now in order to अंडरस्टैंड और विजुअलाइज दिस बेटर, ठीक है. अभी मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, अभी इलेक्ट्रॉन की कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो इलेक्ट्रॉन की कहानी शुरू हुई है, ठीक है. दैट अभी तक इलेक्ट्रॉन वर्ड कॉइन नहीं हुआ था, ठीक है. अब आई विल टेक अ स्मॉल detour in between and show you some videos of the actual experimental setup, ठीक है. ध्यान से देखना, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, अभी भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली ओके.
but I would want you guys to see those videos first, and then have a discussion on this. So as part of आप लोगों के साथ NAPJC 345 का जो अपना डाउट डिस्कशन ग्रुप है, उस पे मैंने 2 वीडियोस शेयर करे थे, ठीक है। सो उसमें से पहला वाला वीडियो आई वुड रिकमेंड दैट आप लोग एक बार देखो, ठीक है। मैं पोदार के ग्रुप पे भी भेज रहा हूँ, जो डाउट्स वाला ग्रुप है उस पे भेजा है मैंने, नॉट ऑन द ऑफिशियल ग्रुप। सो उसमें आप पहला वाला वीडियो देखो, एक बार आप लोग देख लो अपने अपने डिवाइसेस पर, एंड देन आई विल एक्चुअली शो दिस वीडियो ऑन द स्क्रीन एज वेल एंड एक्सप्लेन, ठीक है। आप देखो, आपको काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट लेट इट बी, ठीक है। पहला वाला वीडियो देखना, दोनों मत देखो अभी, जस्ट वॉच द फर्स्ट वन बिकॉज आई एम गोइंग टू डू दैट डिस्कशन फॉर द फर्स्ट वीडियो ओनली। ऑल राइट, सो छोटा सा ही वीडियो है, 1 मिनट का ही है। आयुष्मिता ग्रुप पे भेजा है ना, आप डाउट वाले ग्रुप पे हो कि नहीं हो? ऑल राइट, ठीक है। नाउ हाँ, लेट मी प्ले दैट वीडियो ओवर हेयर एज वेल, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन का साइज बढ़ा लेता हूँ। नाउ लेट्स सी, ऑब्जर्व करना, ये सेटअप है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने फोकस करके दिखाया है, दिस इज द वैक्यूम पंप, ठीक है। दिस इज समथिंग टू जस्ट सक आउट द एयर, ठीक है। इट ट्राइज टू सक आउट एज मच एज पॉसिबल, बट एब्सोल्यूट वैक्यूम तो नहीं क्रिएट कर पाएगा, सो देयर विल बी लो प्रेशर, ठीक है। देन दिस इज द ग्लास ट्यूब, दिस इज द कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। एंड उसके पीछे दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने का सोर्स, ठीक है, जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। ओके, नाउ ये जो स्पार्क हुआ ये एक्चुअली जनरेटर में हुआ है, ट्यूब में नहीं हुआ है। ये वो जनरेटर जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है उसके लिए है, ठीक है। नाउ अब दिखाएगा ट्यूब को, सो दिस इज द ट्यूब नाउ, ठीक है। अच्छा, ट्यूब में स्टार्टिंग में पर्पल ग्लो क्यों है? दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ एनोड रेज, ठीक है। मैं अभी एनोड रेज पर आया नहीं हूँ, मैं अभी सिर्फ कैथोड रेज के बारे में बात कर रहा हूँ, बट आई एम श्योर दैट आप लोगों ने ये वर्ड पहले सुना ही होगा, एनोड रेज, ठीक है। क्या है, क्यों है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, बट अभी के लिए दो ये रेज आई है, पर्पल ग्लो है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एनोड रेज, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ये पर्पल ग्लो धीरे धीरे गायब होगा। क्यों गायब होगा? बिकॉज आप नोटिस करोगे यहाँ पर ये जो पंप है, इससे ये एयर सकआउट करी जा रही है, जो गैस है ना,
ये जो एनोड रेज है वो गैस की वजह से बनती है, गैस के पार्टिकल्स की वजह से, गैस के आयंस की वजह से, मैं समझाऊंगा बाद में। तो अभी स्टार्टिंग में ये पर्पल ग्लो को हटाया जा रहा है, स्टार्टिंग में ये पर्पल ग्लो को हटाया जा रहा है, एंड उसकी वजह से जो एज इन गैस को हटाया जा रहा है उसकी वजह से पर्पल ग्लो कम होता जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअली सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैस निकाल दिया गया है, ठीक है। अब आप नोटिस करना इस पॉइंट पर, ठीक है, एज यू कैन सी एट दिस पॉइंट sufficient amount of gas has been taken out, which now makes way for the cathode ray particles, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट, ठीक है, कैथोड रे पार्टिकल्स आ रहे हैं जो अब ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस करने वाले हैं। पहले अंदर क्योंकि बहुत सारा गैस था, तो दीज पार्टिकल्स वर नॉट एबल टू कम आउट फ्रीली, दे वर एक्चुअली कोलाइडिंग विद द गैस मॉलिक्यूल्स और गैस एटम्स ओनली, ठीक है, जिसकी वजह से पिंक ग्लो आ रहा था, जिसकी वजह से एनोड रेज प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। अभी यहाँ पर एयर को सकआउट कर लिया गया है, गैस को सकआउट कर लिया गया है, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स they are now getting the opportunity to go from left to right, so the green glow is now going to come, as you can see, ठीक है। अब enough vacuum create कर दिया गया है। in fact to give you an example of the modern day CRT, ठीक है, जो modern day cathode ray tube होता है उसमें actually काफी vacuum create करके रखते हैं, and उसमें what they do is actually they यूज थर्मोनिक एमिशंस, मतलब वो कैथोड के मटेरियल को हीट करते हैं, एंड उसको हीट करने के बाद में वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, दे एक्चुअली देन फॉर्म द कैथोड रे पार्टिकल्स, ठीक है। दैट इज द मॉडर्न डे एनालिसिस, मॉडर्न डे ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स विच आर कॉल्ड, ठीक है। पुराने जमाने में एक्चुअली इतने अच्छे वैक्यूम क्रिएट करने के ऑप्शंस नहीं थे, ठीक है। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज दैट जितना एयर था, अगर मैं एयर नहीं निकालूंगा तो वो एयर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करने देगा, वो मॉलिक्यूल्स उनसे टकराते रहेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे पहले वैक्यूम क्रिएट किया गया, ठीक है, अच्छा, एंड देन यू कैन सी दैट ग्रीन ग्लो। नाउ नोटिस करना दैट ग्लो इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपको राइट वाला पार्ट ज्यादा ब्राइट दिखेगा, बिहाइंड दैट एनोड यू कैन सी दैट ग्लो, ठीक है। थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, हाँ, दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड देन नाउ वापस से उन्होंने गैस अंदर डाल दिया तो वापस से पर्पल ग्लो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, सो स्वास्तिक का डाउट है, इज द वैक्यूम ऑलरेडी क्रिएटेड बिफोर द पर्पल ग्लो वुड बी देयर। हाँ, अगर आप लोगों ने मतलब पहले ही वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो वो पर्पल ग्लो नहीं दिखता है, ठीक है। वो पर्पल ग्लो एक्चुअली एनोड रेज की वजह से है, जो मैं थोड़ी टाइम बाद बात करूंगा एनोड रेज क्या होते हैं। हाँ, ग्रीन कलर क्यों है होसांग, उसका आंसर आपको 3 लेक्चर बाद मिलेगा, 3 या 4 लेक्चर बाद, ठीक है। बाय दैट पर्टिकुलर कलर, it has something to do with the frequency of radiation and all, so don't worry about it right now, ये हम लोग करेंगे बाद में कवर, ओके। नाउ अब यहाँ पर सो ओके, एंड में why was there okay, so क्वेश्चन है इसका, कहाँ गया, क्या क्वेश्चन है, युग का एंड में क्लीन स्ट्रेट पर्पल लाइन क्यों है, अरे क्योंकि गैस भर दिया ना अंदर, तो गैस भर दिया है तो एक्चुअली अब नाउ इलेक्ट्रिसिटी और करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट गैस, मतलब इट्स लाइक अ स्पार्क, इट्स लाइक लाइटनिंग दैट is happening inside that tube, ठीक है। anyways that is not something which is important now। अब यहाँ पर रोल करना, यहाँ पर देखना that this was the basic setup, ठीक है, this was the basic setup of the cathode ray tube experiment। अब इसमें मॉडिफिकेशंस के लिए ये वाला वीडियो देखना, ठीक है, अगेन इसका लिंक भी मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं, ट्यूब एक्सप्लोड नहीं होता। ओके, सो अब ये वाला एक वीडियो है, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच आई हैव शेयर्ड ऑन द ग्रुप, द सेकंड वीडियो, दिस इज अबाउट द मॉडिफिकेशंस,
ठीक है. So look at the video once again. It's a 2-minute long video only. एक बार आप लोग देख लो, then I will again go through this on the screen and explain. ठीक है. इस वीडियो का लास्ट वाला पार्ट रहने देना, लास्ट वाला पार्ट एक्सरे से रिलेटेड है. ठीक है. जो अपना डाउट ग्रुप है प्रणव, उस पर शेयर किया हुआ है. एक बार आप लोग देख लो वो वीडियो. All right, so अज्यूमिंग आप लोगों ने देख लिया है. हाँ, स्वास्थ्य इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, कीप दैट क्वेश्चन ऑन होल्ड, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑल राइट, सो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना दिस सेकंड वीडियो. ठीक है, अब आप लोग एक बार यहाँ पे आ जाओ जूम की स्क्रीन पर एंड लेट मी एक्सप्लेन. ठीक है. अच्छा, अब इसमें क्या करा है, फॉस्फोर मतलब व्हाट दे हैव डन इज एक्चुअली फॉस्फोरेसेंस बेस्ड एक कोटिंग कर दी है ताकि उस पर आपको बीम ज्यादा अच्छे से दिखे. ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना. ओके, दिस इज द सेम सेटअप ऑफ द सीआरटी. अब इसमें ग्लास ट्यूब पर तो ग्रीन ग्लो आता ही है, बट ग्लास ट्यूब पे अगर आप जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दो. ठीक है, जिंक सल्फाइड इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस जिसपे these सबएटॉमिक पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो एक प्रोमिनेंट ग्लो दिखता है. ठीक है, तो इस ग्लो को ज्यादा अच्छे से अगर आपको देखना है, ठीक है, तो आपने पीछे ऐसे जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया है. एनी अदर मटेरियल विल आल्सो डू व्हिच एग्जिबिट्स दिस प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फोरेसेंस. सो अभी ऑब्जर्व करना. हाँ, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में थोड़ा सा अंतर रहता है. अभी आपको जरूरत नहीं है उस डिटेल में जाने का. ठीक है, नाउ एक बार बस इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं आपको नोटिस कराता हूँ, ध्यान से नोटिस करना. सी, यहाँ पर पास में वो मैग्नेट लेके आए हैं एंड यू कैन सी देयर इज अ स्लाइट बेंड. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द रेज. ठीक है, एक बार आप दोबारा से नोटिस करना. ये बाद में थोड़ा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट लेके आए तो यू कैन क्लियरली सी दैट डिफ्लेक्शन. ठीक है, लुक अगेन. सो दिस इज अ डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, नाउ ये नेक्स्ट सेटअप है, थोड़ा सा मॉडिफाइड ट्यूब है. तो इसके अंदर क्या करा, बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया. ठीक है, तो जब आपने सेटअप करा तो उसका शैडो आपने देखा यहाँ पर. दोबारा मैं दिखा देता हूँ. द शैडो वाज देयर ऑन द ग्लास वॉल. ठीक है, थोड़ा सा पीछे करके. हाँ, सो ये सेटअप करा, बीच में ऑब्जेक्ट है तो उसका शैडो आपको यहाँ पर दिख रहा है. ठीक है, अभी वो ऑब्जेक्ट हटा देंगे तो वहां पर वापस से आप लोगों को दिखने लग जाएगा ग्लो बिकॉज ऑफ द cathode rays coming and striking that side. ठीक है, again you can see the shadow when the object is placed in between. ठीक है, then this was the paddle wheel based modification. ठीक है, paddle wheel based modification में कैसा है that यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो बाद में समझ में आया लोगों को. सो यहाँ पर ये पैडल व्हील देखा आपने किस तरीके से मूव कर रहा है. अभी उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया क्योंकि पोलैरिटी ऑफ द कैथोड रेज ट्यूब चेंज कर दिया.
ठीक है, जो पॉजिटिव था पहले उसको नेगेटिव बना दिया, तो जो डायरेक्शन है पैडल व्हील का दैट ऑल्सो गॉट चेंज। ठीक है, नाउ अब इस चीज के बारे में नोटिस करना, इसमें काफी और फाइनर डिटेल्स आप लोगों को पता पड़ती हैं, बट दैट इज समथिंग विच कम्स आउट अ लिटिल लेटर। ठीक है, ये उस टाइम पे नहीं पता पड़ा था। व्हाट हैपेंस इज दैट पहले ये समझा जा रहा था दैट यू नो दीज कैथोड रे पार्टिकल्स दे आर एक्चुअली यू नो स्ट्राइकिंग ट्रांसफरिंग मोमेंटम, जिसकी वजह से ये मोशन हो रहा है। ठीक है, दैट वाज समथिंग दैट वाज अंडरस्टूड, बट बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिटेल्स पता पड़ी, उसके मास के बारे में डिटेल्स पता पड़ी, पॉसिबल स्पीड एट विच इट वाज ट्रैवलिंग पता पड़ा, तो कैलकुलेशन से समझ में आया that you know these particles, electrons or cathode ray tube particles as we say, are not capable of producing this much momentum ताकि वो इतने बड़े पैडल व्हील को मूव कर सके। ठीक है, तो बाद में समझ में आया that this mechanical motion that happened was not because of the momentum transfer, it was actually because of the heat, and heat की वजह से जो temperature gradient produce हुआ that actually caused this motion। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर, तो जो पैडल व्हील है उसके टिप्स के अराउंड जहाँ पे एक्चुअली यू नो ब्रॉड सेक्शन ऑफ द व्हील है, वहां पर ग्लो हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ मैं। ठीक है, यू कैन सी दैट यहाँ पर ग्लो हो रहा है, तो इट इज एक्चुअली यू नो हीट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज पार्टिकल्स स्ट्राइक दैट सरफेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट अ टेम्परेचर ग्रेडियंट वाज क्रिएटेड, जिसकी वजह से ये मैकेनिकल मोशन हुआ। But this is something which got to be understood much later. Okay, it was not something which was understood at that point in time. However, it did help in you know understanding that these rays are made up of certain particles. ठीक है, temperature gradient मतलब होता है temperature difference. ठीक है, gradient is a fancy word for difference. All right. Now, these were the modifications which I wanted you to understand and visualize, you know, based on which we have a better understanding of the cathode ray tube experiment. ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, अच्छा कुछ एक डाउट आया, क्या डाउट है? लेट मी जस्ट गो बैक। अंशुल का डाउट है, why did they add an opaque object in between as there would already be a shadow of the metal plate on the anode, right? हाँ, but there was a different setup, मतलब to make it more clear this was a modified version. In fact मैं यहाँ साइड में ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये एक डिफरेंट सेटअप था, तो यहाँ पर कैथोड था और यहाँ पर एनोड है, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड यहाँ से कैथोड यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो उसका क्लियर शैडो यहाँ पर दिख रहा था। ठीक है, अभी ये मत बोलना कि सर इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे जाने चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रे पार्टिकल्स एक्चुअली ट्रैवल एट वेरी हाई स्पीड्स, so they go almost in straight line manner. So this was a modified version to make it more visible. ठीक है, then मनन का डाउट है that is the light on the edge of the paddle wheel a spark or something else? No, it is because of the heat produced because of collisions. ठीक है, हाँ, तो ये स्वास्तिक का डाउट यही था। स्वास्तिक का डाउट एक्चुअली इट वाज अबाउट दिस ओनली, that aren't the electrons less too small in size to cause such a big motion? ठीक है, so that is actually correct, Swastik. It was not because of the momentum transfer, it was because of the heat and the temperature difference that got created. ठीक है, हाँ, रोहन irrelevant डाउट है। ठीक है, बार बार सेम चीज को मत पूछो। Okay, now these were the key experiments and the modification which led to the discovery of electrons. ठीक है, now अब आप ऑब्जर्व करना कि इसके अंदर डिटेलिंग क्या हो रही है। ठीक है, now you know as you can see
these are the important modifications and observations of the cathode ray tube experiment. ठीक है. अच्छा, हेम का क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस वाज नॉट हाई. हेम, कुछ भी नहीं होगा. द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी टू लो टू सी एनी विजिबल चेंजेस. ठीक है, विल नॉट सी. इट इज लाइक अगर आप अपने बेड को अपनी एक उंगली से मूव करना चाह रहे हो तो आपको कुछ विजिबल चेंज ही नहीं दिखेगा. So in order to make some things happen, sometimes you need greater greater activation, you can say. Okay. All right. So now, as I said, that this was something which was about the cathode rays. ठीक है. अभी भी ये cathode rays को नाम नहीं दिया गया था electrons. It was much later. ठीक है, काफी years बाद, around 1880s में maybe, I don't remember the year. There was this another scientist called as G.J. Stoney. He actually is credited for coining the words electron. Coining the word electron. Actually, so what he did was he kind of connected Faraday's postulate that electricity is made up of something tiny and negatively charged. Okay, that was Faraday's postulate about electricity. However, Faraday himself was never able to isolate out that small negatively charged particle by any means. Okay, so what he or G.J. Stoney kind of correlated with that, with the virtue of this setup, with the help of this experiment, we have been able to isolate out that tiny negatively charged particle, and that cathode ray tube particle is what actually makes up electricity, and from there the word electron got coined in. ठीक है. And it was अभी भी, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, this is around 1880s and still electron or this cathode ray tube particle is still not something which is given the status of a subatomic particle. ठीक है, this is not something which was found to be a subatomic particle or given a status of subatomic particle. It is something which happens much later. Just a second, guys. Sorry guys, so as I was saying that it was much later that electrons were given the status of subatomic particle. ठीक है, 1898 में, ठीक है, 1898 में it was J.J. Thomson who actually conducted an experiment. J.J. Thomson conducted an experiment which was a modified version of this CRT. ठीक है, J.J. Thomson का setup कुछ इस तरीके से था, wherein he was able to, ठीक है, थोड़ा सा रफ सेटअप में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ. ठीक है, सो यहाँ से ऐसे, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रे पार्टिकल्स आ रहे थे. ठीक है, एंड अब यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करा. ठीक है, एंड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करा तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन चेंज होने लगा. ठीक है, एंड उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, in order to counter it, he also set up an external magnetic field. ठीक है, and based on the magnitude of the electric field and the magnetic field, he was able to do some calculation. ठीक है, वो calculations हमारे syllabus का part नहीं है अभी,
ठीक है, this is something which is actually called as mass spectrometry. ठीक है, this is a experimental setup का नाम of J.J. Thomson. This is not something, ये आप लोगों को जब सिखाते हैं जब आप कॉलेज में पहुंच जाते हो एंड आपको खुद को एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, ठीक है. सो मास स्पेक्ट्रोमेट्री is the technique that was devised by J.J. Thomson, which he applied on this cathode ray tube experiment. And with this technique, he was able to know Q by M, charge upon mass ratio. ठीक है, charge upon mass ratio of cathode ray tube particles. ठीक है, and to his surprise, what happened was, ठीक है, हाँ अंश, कार्बन एटम का भी जो मास है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से ही मेजर करा गया था बाद में. सो मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाथ ब्रेकिंग टेक्निक विच वाज डेवलप्ड बाय जे.जे. थॉमसन. ठीक है, इट इज यूज्ड टुडे एज वेल. इनफैक्ट आप लोग जब कॉलेज में रहोगे तो यू विल, इफ यू विल इंटरेक्ट विद पीएचडी स्टूडेंट्स, दे माइट आल्सो लेट यू यू नो see that device and do that experiment with them. ठीक है, अदरवाइज ग्रेजुएट लेवल पर मतलब आप जस्ट एंटर करते हो कॉलेज में तो आपको ऐसे डिवाइसेस के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता है. ठीक है, बिकॉज यू गाइज आर प्रोन टू काइंड ऑफ ब्रेकिंग देम अप. सो ओनली अगर आपकी कोई सेटिंग है, कोई पीएचडी वाले कैंडिडेट से आपकी अच्छी दोस्ती हो गई तो शायद आपको दिखा दे, बट अदरवाइज दीज आर नॉट समथिंग विच यू आर एबल टू सी इन जनरल. सो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से क्या मिलता है, दैट you are able to get the charge by mass ratio Q by M of the particles, and the same thing was conducted by J.J. Thomson to calculate the Q by M of these anode ray particles. And what he found out was that this value of Q by M was coming out to be constant. ठीक है, 1.76 into 10 की power 11 coulomb per kg. This is something, it was coming consistent irrespective of the type of gas or the material of cathode that was being used. ठीक है, कोई सा भी गैस लो या कोई सा भी मेटल का इलेक्ट्रोड लो, हमेशा Q by M का वैल्यू यही आ रहा था. So this kind of then established the fact that this electron or cathode ray tube particle is something which is fundamentally present in all the elements. It is something which makes up or is something which is present inside the atom of various elements, and that is how electron got the status of a subatomic particle. ठीक है, so और भी है इलेक्ट्रॉन के ऊपर. ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में दैट हाउ द चार्ज एंड मास अलग अलग वाज बीइंग कैलकुलेटेड. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से तो Q by M मिलता है. ठीक है, ना चार्ज मिलता है ना मास मिलता है, बट Q by M का वैल्यू मिलता है चार्ज बाय मास का. बट देन अनदर एक्सपेरिमेंट डन बाय अनदर साइंटिस्ट रॉबर्ट मिलिगन 1906 के आसपास, आई थिंक ही कंडक्टेड दैट एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट क्लास, बट दिस वाज द बेसिक idea or the story about electron as a subatomic particle. ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बार वापस से जो वीडियो था उसमें समझा देता हूँ दैट हो क्या रहा है. ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो दैट पार्ट ऑफ where these electrons are coming from. ठीक है, so in fact ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को मैं इसी सेटअप में इजीली बता दूंगा दैट ये जो एक्चुअली में ये उस टाइम पे नहीं पता पड़ा था, ये हमें बाद में पता पड़ा दैट ये इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से. द इलेक्ट्रॉन्स वर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द गैस आयंस. ठीक है, जो गैस के पार्टिकल्स थे, गैस के एटम्स थे, उनमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए. They formed the cathode rays as well as जो कैथोड का मटेरियल है, जो मेटल है, ठीक है, यहाँ पर से भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे. ठीक है, so both of them became the source of these anode rays, these cathode rays or electrons as we speak. ठीक है, now coming to this question which Swastika is asking, that are these names of scientists and dates that are required.
Well, not really. This is something which I am highlighting, as a part of the process, something to do with the chronology. ठीक है, समथिंग टू डू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर डिस्कवर्ड. ठीक है, गैस क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्यों एमिट कर रहा है, बिकॉज गैस के पार्टिकल से जब एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करा, ठीक है, तो उसने गैस के पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर दिए. तो इट बिकेम लाइक अ चेन रिएक्शन कि एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने गैस के पार्टिकल को स्ट्राइक करा और उसमें से एनर्जी ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिए. ठीक है, फिर ये चीज नेक्स्ट एटम के साथ हुआ और नेक्स्ट एटम के साथ हुआ, तो इट बिकेम लाइक अ चेन रिएक्शन. एंड एज अ रिजल्ट electrons started coming out from the material of the cathode as well as from the gas particles which were present inside. अगर completely vacuum tube है, ठीक है, तो उसमें फिर गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसमें ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गोइंग टू कम फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द कैथोड ओनली. ठीक है, एनोड रेस के लिए आपको गैस रखना जरूरी है. ठीक है, एनोड रेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, अच्छा, भाविक का क्वेश्चन है बहुत देर से, पिछले 1 घंटे से भाविक एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नेटिज्म इन दिस एक्सपेरिमेंट. ये डिफ्लेक्शन देखने के साथ समझ में आया, डिफ्लेक्शन असेस करने में मैग्नेटिक फील्ड का भी रोल रहता है, समझ में आया भाविक. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के ये जो डायरेक्शन है ये डिफ्लेक्ट हुआ ना, ये पहले जो स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, अब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो इनका डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हुआ ना. अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफ्लेक्ट करता है, वो फ्लेमिंग के रूल है, वो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता अभी, वो आप फिजिक्स में ही सीखोगे. हाँ ऋषिकेश, राइट. ऑल राइट, सो ठीक है, these were the basics about the cathode ray tube experiment. And what we are going to do is in the next class continue from here. ठीक है, talk about anode rays and Millikan experiment also to understand the subatomic particles and then move on to the structure of atom. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है. ठीक है, there is no homework from atomic structure as such. You can look back at the videos again. ठीक है, लुक बैक एट द वीडियोस एंड काइंड ऑफ इंश्योर दैट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई है. ठीक है, आपको थोड़े थोड़े डाउट्स और आते रहेंगे, बट दैट्स ओके. रहा सवाल स्टार्टिंग के इस पार्ट का, तो एज आई सेड कि स्टार्टिंग का पार्ट जो है इसका थ्योरी जो है वो बुकलेट में है ऑलरेडी. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि रीड एक बार बुकलेट का थ्योरी वाला पार्ट. ठीक है, एंड देन आई वुड एडवाइज यू टू रीड सर्टेन पेजेस फ्रॉम एनसीईआरटी to cover that theory wala part. I am not going to write that theory all over this screen and make you dictate and make you write that in your notes. हम लोग जो important part रहेगा सीधे उससे start करेंगे as part of the notes. ठीक है, so जो theory booklet में और NCERT में that should suffice. Okay, all right, चलो, thank you guys. Let's close the lecture for the day.